Hello and welcome back to my channel again. In today's video, gonna share 5+1 law of attraction technique with you which I learned from my mentor. और ये 5+1 law of attraction technique, believe me, आपकी law of attraction की जर्नी को स्पीड अप करने के लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहेगी. सो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब and be with me in this law of attraction journey to manifest the life which you wanted. You can deserve it and you're gonna manifest it with all the tools and techniques and the golden nuggets I'm sharing with you on this channel. So now coming back to today's video, आज के वीडियो पे आने के लिए मैं आपको डिकोड करने वाली हूँ 5+1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जो मैंने मेरे मेंटर से सीखी हुई है, रिसेंटली सीखी है. ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको जब भी आना होता है, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अलाइनमेंट एंड वोर्टेक्स. ऑलरेडी वोर्टेक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो यू कैन चेक इट ऑन माय चैनल व्हाट इज एंड हाउ टू बी इनटू द वोर्टेक्स. आप वोर्टेक्स में कैसे रह सकते हैं. सेकंड स्टेप जो आता है दैट इज अलाइनमेंट. ओके, अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता है आपका माइंड, बॉडी और सोल और आपके एक्शन. Not only mind, body and soul, but even your actions are truly aligned towards whatever you want to manifest into your life. Okay, so coming to 5+1 law of attraction technique, number 1 step, please bring your paper and pen. अपने पेपर पेन लेके आ जाइए. और number 1 step है 5+1 law of attraction technique का, और you can say the hack, you can say this law of attraction speed hack का. The first step is to think. ओके, सबसे पहले आपको शुरुआत ही आपकी थिंकिंग से होनी कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. एंड आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट यू वांट टू मैनिफेस्ट घर, गाड़ी, बंगला एंड ऑल दैट. सर, वी ऑल वांट दैट, बट आई रियली वांट यू टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस, where it is, where is the location, what is the area, how many rooms are there, how is your bedroom look like, how is your kitchen look like, what are the curtains, how is the cushions, what is the door, what is the furniture, what is every single thing. So I want you to think into every single detail of your manifestation. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग ना सोचते नहीं हैं, और जब हम लोग सोचते नहीं हैं तो हम लोग कहीं पर भी लेस पे भी सेटल हो जाते हैं. तो देन वी से कि वी डिडंट गॉट व्हाट वी वांटेड. यूनिवर्स तो हमें कुछ दे दिया, यूनिवर्स तो हमें कुछ और ही दे रहा होता है. बट यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद योर मैनिफेस्टेशंस. यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, राइट? So the number 1 step of this technique is the 5+1 law of attraction. The first is think, and think it as detailed as possible. As much as if you want to manifest the job, then think in what kind of office, which kind of a company, which kind of a role, what kind of a colleague, what will be you wearing, what will be the mode of traveling, आप कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कौन सी लोकेशन पे है, कहाँ पे उसके नेटवर्किंग हो रहे हैं, आपके रोल्स क्या होंगे, what will be, how your desktop look like, how is your working station look like, right? So think in every single detail as much as possible, because the moment you are putting every minute detail into it, you are getting the clarity, and clarity is the power. Not only you are getting the clarity, but you're telling to the universe, I want this and this and this thing. And जैसे जैसे आपको clarity आती जाएगी ना, आप आगे बढ़ते जाएंगे. The number 2 step which come into this is script. Please understand one thing, that scripting is one of the most powerful tool of law of attraction journey. आपको लगता है लिखने से कुछ नहीं होता है, बट जस्ट इमेजिन जो बाहुबली बनी है ना, इतना मेगा ब्लॉकबस्टर जो बनी है, जो भी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनी है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत स्क्रिप्टिंग से ही हुई थी. किसी ना किसी ने उसको पेपर पे लिखा ही था. जब आप पेपर पे लिखते हैं विद एवरी माइन्यूट डिटेल, अगर आप स्टेप 1 में जाएंगे, मैंने बोला डिटेल के साथ लिखिए, राइट? तो जब आप इतने डिटेल के साथ में लिख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं कि आई वॉन्ट दिस थिंग, एंड यू आर नॉट ओनली टेलिंग टू द यूनिवर्स, यू आर ऑल्सो टेलिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टोटल सिग्नल दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए है. एंड व्हेन यू आर स्क्रिप्टिंग इट, यू आर डबल कंफर्मिंग इट. हम लोग जब बचपन में हमने लाइफ में जो भी कुछ सीखा है, वो हम लोगों ने वो लिख के सीखा है. वी ऑलवेज यूज टू राइट. हमारे बचपन में पेरेंट्स भी बोल रहे होते थे कि बेटा जो अगर याद करना है ना, आपको जस्ट राइट कर लीजिए एंड यू विल एबल टू क्लियर दैट एग्जाम. आपको एग्जाम क्लियर कर जाते थे. Same is the case with your manifestation. The reason we say write is scripted because you have to have the absolute clarity that what you want from the universe. There is plenty available, plenty and abundance available for each and everyone.
गड़बड़ कहाँ हो जाती है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या होता है, हमें ए चाहिए कि हमें बी चाहिए, हमें एक्स चाहिए कि हमें वाई चाहिए, हमें जी चाहिए कि वी रियली डोंट वांट, एंड देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड वी जस्ट लीव द मैनिफेस्टेशन। अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी हम लोग छोड़ देते हैं। तो डोंट डू दैट थिंग, राइट। स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यू नो ऑल माई मेंटर्स, मेरे मास्टर्स मेंटर्स, जब भी वो लोग बहुत एम्फेसाइज कर रहे होते हैं व्हेन वी आर स्क्रिप्टिंग, प्लीज स्क्रिप्ट इट ऑन अ नाइस थिंग, प्लीज स्क्रिप्ट इट ऑन अ नाइस पेपर। डोंट जस्ट बाय एंड जस्ट ब्रिंग एनी पेपर, कुछ भी कचरा उठा के, कुछ भी कचरा पेपर उठा के जस्ट उस पर लिखना मत शुरू हो जाइए। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अपना फ्यूचर लिख रहे हैं, राइट, आप अपना भविष्य लिख रहे हैं। उस भविष्य को आप ऐसे पेपर पर बिल्कुल नहीं लिखना चाहेंगे जो ना उसको उठा के फिर रद्द में फेंक देंगे, या हाउ यू आर डूइंग दैट थिंग। डोंट स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी विद पुराना नोटबुक का पीछे कहीं पे लिखना शुरू कर दिया या कहीं पे भी। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज अगेन योर अलाइनमेंट, दिस इज अगेन कमिंग टू योर अलाइनमेंट। क्योंकि अगर आप स्क्रिप्टिंग के दौरान पे आप कोई भी पुराना पेपर उठा के लिख रहे हैं, या कोई भी पुरानी नोटबुक उठा के लिख रहे हैं, या कहीं भी किसी भी पेपर पे कुछ भी लिख रहे हैं, देन यू आर टेलिंग टू द यूनिवर्स दैट यू आर नॉट सीरियस। जस्ट इमेजिन इफ दिस वुड हैव बीन अ चेक, राइट। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट चेक होता तो आई एम श्योर आप वो चेक को या उसी को ऐसे उधर कहीं कहीं नहीं रख देते, या फिर यू डोंट राइट थिंग्स ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन अ डर्टी पेपर। आपके ज़मीन के कागजात होते हैं, या आपके जो भी प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, आप उसको किसी गंदे पेपर पे नहीं करवाते हैं, राइट। यू मेक देम वेरी नाइसली। सेम इज द केस विद योर मैनिफेस्टेशन, same is the case with all your dreams. When you start your manifestation journey, please make sure you are starting on a new notebook, please know you on a new journal or anything with a fresh feeling, with a fresh note, and you keep it very nicely. उसको अच्छे से रखिए, because नहीं तो आपने ऐसा मत सोच के लिखे हाँ ठीक है मुझे मैंने बोला है, सोनिया ने बोला स्क्रिप्टिंग करो, उसके बाद भाड़ में गया, जहाँ गया हमें पता नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग करने में, आपको पता ही नहीं कहाँ रखा है, वो पेपर ही नहीं पता है कहाँ है क्या नहीं है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट यू आर टेलिंग टू द यूनिवर्स इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अपने इंपॉर्टेंट कागजात को आप ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं, राइट। तो सेम वे स्क्रिप्टिंग में भी अलाइनमेंट इसलिए आता है, स्क्रिप्टिंग में भी आपकी द इमोशन इसलिए आते हैं। सो द सेकेंड स्टेप इज स्क्रिप्टिंग. The third step is speaking. And speaking, I'm not at all talking about, आप जाके दुनिया भर को बताइए. आई एम टॉकिंग अबाउट द एफर्मेशंस. जस्ट रिपीट वॉट एवर यू हैव, आपने जो लिखा है उसके एक पावरफुल एफर्मेशंस बना लीजिए, एक प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन बना लीजिए, एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दैट एफर्मेशंस थ्रू आउट योर डे. आप घर में खाना बना रहे हैं तब भी आप सिप कर सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं या सुन सकते हैं. आप जो भी कुछ कर रहे हैं, इफ यू आर इवन बेथिंग, यू कैन जस्ट रिपीट ऑल दिस एफर्मेशंस व्हाइल डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटी. रीजन वी से दैट रिपीटिशन इज द मास्टर की टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. जब आप उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं तो आप अल्टीमेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं दैट दिस इज माई गोल. पहली बात तो आप अलाइनमेंट में रहेंगे जब आप रिपीट कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि दिस इज माई रियलिटी. बिकॉज एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि मेक योर एफर्मेशंस इन अ पावरफुल एंड प्रेजेंट वे. The more you are repeating it, the more you are telling it to your subconscious mind. Your subconscious mind and conscious mind are now together working towards making your dream into reality. जब आप क्लैरिटी के साथ आते हैं, जब आप नीटनेस के साथ में आते हैं और जब उसको बोल रहे होते हैं तो आप बहुत फोकस्ड होते हैं, right? So the third step is speaking for this feeling. Just don't say like I want that BMW. No, that is not a feeling. The feeling is, I just love the smell of the BMW. I love its color, the texture it is having. I just feel like, roaming around in my car like so nicely. My air passing through my hairs, it feeling so great. Can you just feel it? So when you are on a manifestation journey, just feel the way you will be behaving or the way you will be having or acting when it will come true. You don't just write I want to be the CEO. No, एक CEO कभी ऐसे नहीं होता है कि घर मतलब I'm sure the CEOs having some decorum. CEOs are having some lifestyles. CEO are having some routines. CEO are having some powerful morning routine. ठीक है, तो वो लोग CEO जो आ रहे होते हैं उस लाइफस्टाइल के साथ में आ रहे थे. दे आर नॉट लाइक दैट यार आई वांट टू बी द CEO और फिर अपने कहीं ना कहीं पे एक अनफोकस्ड टास्क की तरफ चल गए. द CEOs आर कमिंग विद हाईली स्केड्यूल्ड टाइमिंग. तो सेम, स्टार्ट एक्टिंग एज अ CEO राइट नाउ.
Are you scheduling your timetable? Are you scheduling your day? Are you dressing up like a CEO? Are you behaving like a CEO? Are you taking the decisions from the point of CEO, or are you still into that frequency of lack, or you're still frequency कि मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास नहीं है? Because this is the where again misalignment is coming when it comes to the manifestations and your things. So just behave and act and feel the way as it is happening now, जैसे वो moment आपके साथ अभी ही हो रहा है. And when you will start acting and behaving in a certain way and always taking action in a certain way, believe me, you are becoming your better version and universe is giving you more and more opportunities. CEO के पास जब अपॉर्चुनिटीज आती है ना, वो लोग कभी कैलकुलेशंस में नहीं लगते हैं कि मैं इसका क्या होगा, एक्सक्यूजेस क्या होंगे, XYZ. they just go for it. They just take that risk and they move forward because they know if the opportunity has knocked at their door, they have to grab it so that they can move forward. So are you behaving like that CEO, or are you still नहीं यार, घर वालों को क्या बोलूंगी, हस्बैंड को क्या बोलूंगी, इन लॉज को क्या बोलेंगे, बच्चे हैं, ये है वो है. These are all the responsibilities which are there with the almost successful CEO also. Please understand one thing, it is not like कि उनके पास responsibilities नहीं होती हैं, but they have somehow managed by programming their subconscious mind, by programming their conscious mind to act in a powerful way in spite of all the challenges, day-to-day challenges which goes on into the life, right? So the fourth step is always and always feel about it. Fifth step is act. You have to act it, because ultimately you have to take actions. You have to take certain actions in a right direction. It is not like that, if you want to manifest a particular job, please understand, you have to have the certain degree, you have to have that experiences, you have to have that skill set. If you are already having, then upgrade it. If you are not having anything, अगर आपके पास कुछ हॉबी है, अगर आप मेहंदी आप सिखा सकते हैं, अगर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई आप कर सकते हैं, अगर आप खाना बनाना सिखा सकते हैं, अगर ब्लॉग बना सकते हैं, अगर आप वीडियोस बना सकते हैं, अगर आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, हिंदी सिखा सकते हैं, एनीथिंग, आई एम 100% श्योर यू आर हैविंग समथिंग इनसाइड यू, बिकॉज यूनिवर्स ने किसी को भी ऐसे ही नहीं बनाया है. भरपूर आपके अंदर क्षमता दी है, भरपूर आपके अंदर काबिलियत दी है. ओनली थिंग इज दैट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन दैट क्षमता. ओनली थिंग इज दैट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन दैट काबिलियत. आप कहीं ना कहीं अपने आप को जांच रहे हो दुनिया के हिसाब से, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जांच रहे हो अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हो जो आपके माइंड में स्टोरी चल रही है. एंड दिस इज वेयर द इनर चाइल्ड हीलिंग कम इनटू द पिक्चर, दैट यू हैव टू हील व्हाट इज देयर इनसाइड यू. दिस इज वेयर द हीलिंग कम इनटू द पिक्चर, व्हेन यू हैव टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन. आपको आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ता है टू come and tap into that potential, right? So the fifth step is always and always taking inspired action, taking aligned action into the same direction, so that आपकी manifestations true होती ही जाए. And the sixth is, this is our all 5 steps, that is thinking, scripting, speaking, feeling and acting. And the last and important step is becoming the alignment. आप उसको alignment बने रहिए. alignment से कहने का मतलब सिर्फ यही है, always and always that behave in a certain way, act in a certain way as if it is happening now. सुबह आप affirm करें, I am the billionaire, I am wealthy, I am richer, I am successful, and then at the end of the day you are just going and bargaining for 10 rupees or 5 rupees or free का धनिया मिर्ची दे दो. No, this is not you, or this is what not universe want you to. क्योंकि अगर आप जब वो फ्री के में आ जाते हैं, और if you are just coming for the cheapest of the things, if you are coming for the discounts, if you are looking for the discounts, सुबह आप मिलेनियर वेल्दियर बन के गए हो और जाके मॉल में जाके देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस कौन सा है, सबसे चीप क्वालिटी का क्या है, थोड़ा तो एडजस्ट कर लो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. what you are telling to the universe that I am not wealthy, I am not billionaire, and you are operating from the lack frequency. And this is where the misalignment in your thought and action and the feeling come into the picture, right? So take the alignment, be into the alignment, and alignment is only and only possible when you reprogram your mind, and you have to dig deep into your subconscious mind and the conscious mind to know how you are operating. प्रॉब्लम कहाँ जाता है ना कि हम लोग कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट कॉन्शियसली, बट 95% ऑफ द टाइम वी आर ऑपरेटिंग अवर लाइफ फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड.
You have to become really conscious enough to know what your subconscious mind is thinking, so that you can reprogram your subconscious mind and carry forward with your law of attraction journey. So if you're interested in learning more about the training your subconscious mind, what are the tools and the techniques and how to dig deep into your subconscious mind, I'm coming up with my free masterclass on this Sunday. The description is given, the link is given in my description. Make sure you join. It is free for all, but again, because of the Zoom, it will be restricted to only, to have the one-to-one hand holding and to have the one-to-one more of experience. It will be live session, Q&A will be there. It will not like one way. You can always interact with me, you can always ask your question, you can always ask where you are lacking in your law of attraction journey. So make sure you just join in over there and grab into the first 100 over there, because after that the room will be closed. Because of the Zoom, the room will be closed and I will not be able to handhold you personally. So on that note, ending today's video, hit the again telling you, if you are new to my channel, not subscribe, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन मैनिफेस्टेशन जर्नी. रीजन इज दैट आई नो you need it, I know you deserve it, and I know you're worth it, because universe has chosen you. If you are on my channel, then this is the signal that universe is guiding you towards higher self, towards bigger self. Universe is trusting. The question is, are you? See you on the next video.